Welcome, my dear students, to the social science lecture. Myself, Professor Ravindra Jangid here. In this class, we are going to start with the chapter number 5th of our history. As you are familiar with your syllabus that we have completed till the chapter number 3rd, and the chapter number 4th and chapter number 6th is omitted for this year in your syllabus. So now we are moved to the next chapter, that is the chapter number 5th, which is mass media and history. In this chapter we are going to study the complete detailed syllabus of mass media and about their history. How the mass media emerged in our country and developed in day-to-day life, which was previous mass media sources and which was newly added mass media sources which are present in our country and in the world. So now one by one we are going to study, as the full chapter is divided into 5 parts. First one is introduction to mass media. Second one, history to mass media. Why do we need mass media? Critical understanding of the information received through mass media, and last part, mass media and the professional opportunities. इन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे. तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर. तो जो पार्ट कैंसिल रहेगा वो मैं आपको यहाँ पे बताते जाऊँगा. ये थिंक अबाउट इट, ये पार्ट यहाँ पे इसके अंदर कैंसिल है. नाउ फर्स्ट वन 3.1 इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया. Mass media contain the two words. Mass in the context means an aggregation of people. Aggregation means it's total. Aggregation means total of the people. Media means the various modes of communications. So the word mass and media means the number of people using the different ways to communicate. That is known as the mass media. How they get information, how we receive the information through the different sources from the different part of the nation or different part of the world. That means the mass media. So the mass means the aggregation of the people, the total of the people, and media means the different source of communications. Thus, mass media is a field of mass communication. We can easily send some information to a far away destination through a medium of communication. In the olden days, a carrier would run in the street beating the drums and carrying out the important news according to the orders of the king. The news would spread among the people by the word of mouth. आपने मूवीज़ देखी रहेगी, जोधा अकबर देखी होगी, या फिर पुराने जो भीम वाला जो एक आपने देखा रहेगा कार्टून जो आते हैं छोटे बच्चों के, उसमें देखा रहेगा कि एक पर्सन जब भी कोई इंपॉर्टेंट मैसेज अगर किंग भेजता है पब्लिक के अंदर, अपने गांव के अंदर, तो क्या करता है, एक पर्सन को भेजता है जो ड्रम साथ में लेके जाता है, एंड ही बीट्स द ड्रम एंड गिव्स द मैसेज टू द people, and he gathered the people by beating the drums, and the people will get the message that someone is beating the drum. It means there isn't some message for the people. तो वो लोग अपने आप समझ जाते थे कि कोई भी अगर ड्रम पीट रहा हो, अगर यहाँ पे एक लोकल प्लेस पर किंगडम के अंदर के कोई सर्वेंट हो, तो उनको पता लग जाता था कि किंग राजा की तरफ से कोई मैसेज आया है. नाउ नेक्स्ट वन, नाउ द हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया, हाउ इट इमर्ज, कैसे कैसे ये चीज़ें बढ़ती गई. पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, पहली मैगजीन कौन सी थी, पहला मास मीडिया कैसे डेवलप हुआ, ये सारी चीज़ें हम आगे स्टडी करेंगे. प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड द न्यूज़पेपर वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इंडिया में आए थे 1600 के बाद आए थे, ठीक है ना. तो उस हिसाब से वहाँ पे 17th सेंचुरी की जो स्टार्टिंग थी, उस समय में ब्रिटिश इंडिया के अंदर आए, और उस समय में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यानी प्रिंट करना, न्यूज़पेपर लिखना नहीं, हैंड रिटन नहीं, प्रिंट टेक्नोलॉजी और न्यूज़पेपर इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया. People started receiving the printed news through the newspapers. Newspaper became the first mass medium sources of circulating information and knowledge among the people. अब आपको न्यूज़पेपर का तो फुल फॉर्म, पेपर का मतलब होता है कि जस्ट नॉर्मल पेपर, बट न्यूज़ का फुल फॉर्म क्या है किसी को, मोस्ट ऑफ जन को आपको पता नहीं रहेगा. एंड आई कैन say that even many teachers were not knowing about the full form of news. You can even ask your school teachers. I'm not saying that everyone is not knowing, but there are few teachers who are not able even know the meaning of news. News means the north, east, west and south.
इट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ न्यूज़, दैट इज़ अ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। तो इंडिया के अंदर हो या वर्ल्ड के अंदर हो या पूरे अर्थ के ऊपर हो, तो वहाँ के नॉर्थ की, साउथ की, ईस्ट की, वेस्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन देना, उस चीज़ को कहते हैं न्यूज़पेपर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर न्यूज़पेपर महाराष्ट्र का है तो नॉर्थ महाराष्ट्र, साउथ महाराष्ट्र, ईस्ट महाराष्ट्र, वेस्ट महाराष्ट्र। न्यूज़पेपर इंडिया का है तो नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, सबकी इन्फॉर्मेशन उसको देनी होगी। ठीक है ना। उसके अंदर अगर जैसे एग्जांपल एक पेज पे आता है वर्ल्ड करके लिखा हुआ रहता है, तो वो एडिशनल पेपर रहता है, तो उसके अंदर वर्ल्ड में नॉर्थन कंट्रीज़ की, ईस्टर्न कंट्रीज़ की, वेस्टर्न कंट्रीज़ की और सदर्न कंट्रीज़ की, सारे कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन उसके अंदर दी रहेगी। So that is a full form of newspaper. So the first media which was introduced in India, that was a newspaper in the printed technology. Newspaper is a publication which mainly prints the news, editorials, people's opinions, entertaining or the supplementary content. न्यूज़पेपर सिर्फ न्यूज़पेपर कंटेंट नहीं बनाता, वो ये सारी चीज़ें भी बनाता है। आपने देखा रहेगा एडिटोरियल्स आते हैं अलग अलग पेज पे। ठीक है। उसके बाद पब्लिक ओपिनियन आता है, मंत्री लोग के हो या फिर एग्जाम्पल कोई बड़ी सेलिब्रिटीज़ के हो, बड़े एनजीओ के ओनर के हो, तो उनके बड़े सोशल सर्वेंट के हो, तो ये सारी चीज़ें वो भी प्रिंट की जाती है। सप्लीमेंट्री कार्टून्स, कॉमिक्स, ये सब भी न्यूज़पेपर की पब्लिकेशन पब्लिश की जाती है। इट इज़ एन प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलरली एट डेफिनेट टाइम। न्यूज़पेपर प्रोवाइड द वेरियस लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। लोकल यानी एग्जांपल सिटीज़ की, विलेज की, यहाँ की न्यूज़। नेशनल यानी अपने कंट्री की पूरी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। इंटरनेशनल यानी द डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, उसकी इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर के अंदर आपको मिल जाती है। न्यूज़पेपर आर द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट विच रिकॉर्ड्स द करंट इवेंट्स। न्यूज़पेपर क्या होता है, आपको डेली फ्रेश न्यूज़, आपने सुना रहेगा ना, न्यूज़पेपर कोई बेचता था, देखो आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। ठीक है ना। कभी ऐसा सुना कल की बासी खबर, कल की बासी खबर? नहीं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है, बिकॉज न्यूज़पेपर गिव्स द फ्रेश न्यूज़। हाँ, जो चीज़ें कल घटी ऑन द स्पॉट, उसको नेक्स्ट डे पे वो क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं, ताकि जो पॉपुलेशन है, जो पीपल है, उनको करंट इवेंट की नॉलेज रहे, उनके कंट्री में क्या हो रहा है, उनके लोकल एरियाज़ में क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें उनको नॉलेज मिल सके। प्रीकर्सर ऑफ न्यूज़पेपर। प्रीकर्सर का मतलब क्या होता है कि न्यूज़पेपर की शुरुआत कैसे हुई। प्रीकर्सर का मतलब क्या होता है, न्यूज़पेपर की शुरुआत कैसे की गई, कैसे ये न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ और आज इतना ज़्यादा फेमस हो गया। बिफोर द बिगिनिंग ऑफ कॉमन एरा। कॉमन एरा मतलब कौन सा, आपका जो 0th century यहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ पे बिफोर ये जीसस क्राइस्ट का बॉर्न होता है। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या बोला, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ कॉमन एरा देयर वाज एन कस्टम इन इजिप्ट ऑफ प्लेसिंग इंस्क्रिप्शंस विद द रॉयल डिक्रीज एट द पब्लिक प्लेस। जैसे यहाँ पे भी हमारे अशोका टाइम में क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थर पे, बड़े बड़े स्टोन्स के ऊपर क्या करते थे, इंस्क्रिप्ट करते थे कोई मैसेज और कहीं पे लगा देते थे, ओपनिंग का हो या कोई बर्थडे का हो या इन्फॉर्मेशन, वो लोग क्या करते थे, स्टोन पे लिखते थे। तो उसी हिसाब से इजिप्ट में भी ये कस्टम था कि अगर कोई रॉयल डिक्रीज हो यानी कोई मैसेज हो, तो उसको इंस्क्रिप्ट करके वहाँ पे क्या करते थे, पब्लिक प्लेस पे लगा दिया जाता था। एम्परर अशोका ऑल्सो रिसोर्टेड टू सिमिलर मैथड टू रीच आउट टू दिस सब्जेक्ट। In the Roman Empire, the royal decrees were written on the paper and those were distributed in all the region. अलग अलग किंग के टाइम पे अलग अलग सिस्टम होता था। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल है, मैंने आपको ऊपर बताया, इजिप्ट और इंडिया के अशोका के पीरियड के टाइम स्टोन पे लिखते थे, लेकिन रोमन एम्पायर के टाइम क्या होता था, न्यूज़पेपर के जैसे नहीं, नॉर्मल पेपर पे लिख के मैसेज, जैसे आपने देखा रहेगा ना, कोई किसी को मैसेज देना है तो एक दूत भेजते थे, साथ में एक पर्सन को भेजा जाता था, सेंडिंग अ मैसेज, मैसेंजर जिसको कहते थे, वो पेपर में लिख के वो फरमान जैसा सुनाया करते थे। तो वो रोमन एम्पायर में स्टार्ट हुआ। और उसी टाइम में इंडिया में जब मुगल आए तो वो लोग का भी सेम सिस्टम था, दे आर राइटिंग, यूज टू राइट ऑन द पेपर वट एवर दैट इज एन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग टू द पीपल ऑफ their empire. They also contain the information of various events taking place in the nation and its capital. During the Julius Caesar reign, newspaper also known as an acta diurna, means of act of every day. Acta diurna का मतलब क्या होता है, act of every day. It was in time of Julius Caesar. What was the name of the person? Julius Caesar.
used to place at public places in Rome. It was very effective way of conveying the royal commands to the people. In the 7th century CE, 7th century CE means the starting of 700 and above, ठीक है ना? तो उस हिसाब से उस समय में क्या होता था? The royal direct royal dictates were distributed among the people at the public places. In England, handouts मतलब क्या होता है? Pamphlets type. In England, handouts used to be distributed occasionally, giving information about wars and important events. Travelers arriving from far away would add the spice to the stories from those places and narrate it to the local people. कोई अगर दूसरे गांव से या कोई दूसरे शहर से आए जहाँ पे कुछ लड़ाई हो रही हो तो वो क्या करते थे, उसमें मिर्च मसाला मिला के वो लोग उसको बताते थे. मिर्च मसाला मतलब ओरिजिनली स्पाइसेस नहीं डालते थे, लेकिन बातों को घुमा के ऐसे बताते थे ताकि पब्लिक डर जाए, है ना. आपको भी अगर जैसे एग्जाम्पल है, कोई अगर बात बताते तो आप उसमें अपने 2 वर्ड्स ऐड करके सामने वाले को बताते हो, ठीक है ना. तो उस हिसाब से अगर कोई ट्रैवलर उस समय में बाहर से आता तो वो और 2 चीज़ें ऐड करके बताता, लेकिन ज़्यादा करके माउथ पब्लिकेशन ही हुआ करता था इन दी प्रीवियस टाइम बिफोर दी 15th century. The ambassador of a king posted at various places would send back important news to the royal court. Now, the first newspaper, how the newspaper begins and which was the first newspaper in our country. Now we can see that Bengal Gazette. The first English newspaper of India was printed on the 29th January 1718. This was in 18th century. It was beginning of 18th century. The first newspaper printed of India was on 29th of January 1718. It was named as a Calcutta General Advisor. उनका पहला नाम क्या था इस न्यूज़पेपर का? कलकत्ता जनरल एडवाइज़र, CGA न्यूज़पेपर करके इसको कहते थे. और द बंगाल गैजेट, इसको 2 नाम दिए गए थे स्टार्टिंग में 1780s में. फर्स्टली इट वाज कॉल्ड एज इन कलकत्ता जनरल एडवाइज़र और द बंगाल गैजेट्स. इट वाज स्टार्टेड बाय जेम्स अगस्टस हिकी. एग्जाम में आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं इसके ऊपर. नेम द, जैसे एग्जांपल है करेक्ट द फॉलोइंग, उसमें से कुछ फाइंड आउट द रॉन्ग वन करके ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. तो उसमें आपको याद रखना है दिस बंगाल गैजेट न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड ऑन 29th of January 1780 and it was named as an Calcutta General Advisor or the Bengal Gazette, or it was started by the James Augustus Hickey, an Irish gentleman. Irish मतलब कहाँ से थे, बिलोंग करते थे, ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ईरान से बिलोंग करते थे. सो ही वॉज एन आयरिश जेंटलमैन. Now the second newspaper, which is known as a Darpan. The newspaper Darpan was started in 1832. देखो वो कब स्टार्ट हुआ था? 1718. The second newspaper in India was started on 1832 in Mumbai. बाल शास्त्री जम्बेकर was the editor of the Darpan. अब आपको यहाँ पे फोटो दिख रहा रहेगा, बाल शास्त्री जम्बेकर. ही वॉज एन महाराष्ट्रन पर्सन. तो उन्होंने ये दर्पण न्यूज़पेपर स्टार्ट किया. दर्पण का मतलब आपको मालूम रहेगा, दर्पण मतलब होता है कांच, कि आपको सच्चाई बता दे आपकी चीज़ों की. तो इस हिसाब से ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था. द न्यूज़ प्रिंटेड इन दर्पण कैन बी ऑल रिव्यू टू नो ऑल अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल इवेंट्स ऑफ दोज टाइम. चाहे वो पॉलिटिकल न्यूज़ हो, इकोनॉमिक यानी कंट्री के रिलेटेड कोई न्यूज़ हो, सोशल समाज के रिलेटेड हो, कल्चर यानी रिलीजियस या रीति रिवाज के रिलेटेड में कोई न्यूज़ हो, उन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन इस न्यूज़पेपर के अंदर दी जाती थी. Here are the few titles, news titles of this newspaper. The like first one, the accounts of expenditure from the 3 administrative division of East India Company. 3 division कौन से थे उस टाइम? एक था आपका बंगाल, दूसरा था मद्रास एंड थर्ड था बॉम्बे. ठीक है ना. कौन सा था? बंगाल यानी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ये 3 प्रोविंसेस थे ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेटिव. उसके एक्सपेंस के बारे में डिटेल इसके अंदर दी गई थी. सेकंड, डिवीजन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. सेकंड वन, द डेंजर ऑफ रशियन अटैक ऑन द नेशन. क्या हो सकता है अगर रशिया ने हम पे अटैक कर दिया तो हमारे कंट्री के लिए क्या खराब हो सकता था उस समय में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इन्होंने अपने न्यूज़पेपर में दी थी. अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमिटी फ्रॉम द क्लीनिनेस ऑफ द सिटी. ठीक है ना. अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमिटी फॉर द क्लीनिनेस ऑफ सिटी, इसके बारे में उन्होंने क्या चीज़ें बताई थी? वो री मैरिज ऑफ अ हिंदू विडोज़, ये उन्होंने टॉपिक उठाया था कि हर एक मतलब छोटी उम्र में अगर किसी का हस्बैंड डेथ हो जाती है तो उस बालिका का पुनर्विवाह होना चाहिए. उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी इनके न्यूज़पेपर में आई थी, बाल शास्त्री जम्बेकर के न्यूज़पेपर में, जिनके न्यूज़पेपर का नाम क्या था? दर्पण. द इंसेप्शंस ऑफ द थिएटर एट द कलकत्ता. अचीवमेंट्स ऑफ
Raja Ram Mohan Roy in England, reporting of such news through the light on the various historical event of those days। इस हिसाब से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते थे उनके ऊपर बाल शास्त्री जंबेकर ने अपने न्यूज़पेपर में भर भर के लिखा, और जिसके कारण हमारे फ्रीडम मूवमेंट के अंदर मतलब जो एक बोलते हैं ना लाइट एनलाइटनमेंट जो था वो धीरे धीरे उमड़ने लगा। नेक्स्ट न्यूज़पेपर इज़ अ प्रभाकर। नेक्स्ट न्यूज़पेपर इज़ अ प्रभाकर। देखो फर्स्ट वन कौन सा था, इंग्लिश न्यूज़पेपर था, बाकी सब कौन से आ गए अभी धीरे धीरे करके रिलीजियस न्यूज़पेपर यानी रीजनल न्यूज़पेपर आने लगे, सॉरी रिलीजियस नहीं रीजनल, ठीक है। दिस न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय भाऊ महाजन, ठीक है। दिस वॉज अगेन स्टार्टेड इन द महाराष्ट्र। द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द शतपत्र, द लेटर्स बाय लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख। शतपत्र करके एक लेटर लिखा था गोपाल हरि देशमुख ने, क्रिएटिंग द सोशल अवेयरनेस विच वॉज पब्लिश्ड इन दिस न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर का नाम क्या था आपके, प्रभाकर। और इनको बनाने का काम किसने किया था, इसको प्रिंट करने का और ये इस्टेब्लिश करने का काम किसने किया था, भाऊ महाजन ने। इसके अंदर दो फेमस टाइटल इन्होंने अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया था जिसके कारण ये न्यूज़पेपर फेमस हुआ था। एक था फ्रेंच रिवॉल्यूशन की हिस्ट्री और दूसरा था शतपत्र जो लिखा था लोक हितवादी। लोक हितवादी मतलब क्या होता है, पब्लिक के लिए हित में बोलने वाले, तो उनका नाम क्या था, गोपाल हरि देशमुख, GH देशमुख। नेक्स्ट वन इज एन दान्योदय। सो नाउ दिस न्यूज़ फ्रॉम दिस ऑनवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो और द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर।